بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مردے کو قبر میں لیٹا دیا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نہیں دکھتا۔ سخت تاریک قبر، روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو مردہ ہٹانا چاہے گا لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کیڑے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے اور دور کر سکے۔ آپ کا قبرستان میں جانا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو قبریں ایک جیسی دکھتی ہے، قبر میں سے اندر سے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں بچے کو دبا کر رکھتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ کسی نے قبر کو چکنا چور کر دیا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، کسی کے قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ قبر میں ایک اندھا سانپ ہے، جب مردے کو وہ ڈنک مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے پتہ نہیں۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ جو نیک ہوگا کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے پتہ نہیں۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہیں؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے کہیں گے یہ کون صاحب ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہے گا ہائے افسوس، مجھے نہیں پتہ۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور
से गर्म लू आती रहती है और जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पे अजाब शुरू हो जाता है। अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही वहशतनाक होता है। उसके हाथ में लोहे के गज होते हैं जो उससे मारते रहते हैं। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं, अगर आप मेरे सवालों के सही जवाब ना देते तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवाल का जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खोया और तूने दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान ले आया होता, उनके अहकामात पर अमल करता तो मेरा ठिकाना यही जन्नत होता। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है तो उसकी पसलियाँ इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है। उसकी कब्र में जहन्नम की आग की गर्म लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जहन्नम की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है तो फरिश्तों से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बता के आऊं कि मैं कामयाब हो गया हूं। तो फरिश्ते कहते हैं, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं, आप आराम से सो जाएं। अब आपको आपका महबूब आकर जगाएगा। वो आराम से तो सो जाता है और बुरे बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे जहन्नम का आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिया जाएगा जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्तों के पास लोहे के गज होंगे जो उसको मारते होंगे। वो गज इतनी वजनी होगी कि सारे जिन और सारे इंसान मिलकर उठाएं तो उसे नहीं उठा सकेंगे। अगर उस गज को किसी पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ मिट्टी बन जाए। जब वो गज फरिश्ते बुरे बंदे को मारेंगे तो वो 70 गज ज़मीन में घुस जाएगा। फरिश्ते फिर उसे निकालेंगे, फिर मारेंगे। ऐसे ही क़यामत तक चलता रहेगा। एक फरिश्ते के हाथ में बहुत बड़ा वजनी पत्थर होगा। वो उसे मारेंगे तो उसका चेहरा चटनी बन जाएगा और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। फरिश्ते उस पत्थर को उठाने जाएंगे तब उसका चेहरा फिर से ही सालिम हो जाएगा। फिर मारेंगे पत्थर। ऐसे ही क़यामत तक चलता रहेगा। सांप बिच्छू अलग डस रहे होंगे। बहुत बुरा मंजर होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, कब्र में काफिर पर ज़रूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसको डसते रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो ज़मीन बिल्कुल सब्ज़ी न उगाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुज़र हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, इनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब में नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे वो बच सकता था। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करते में पर्दा नहीं करता था। एक रिवायत में है कि पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीरकर आधी उस कब्र पे गाड़ दी, आधी दूसरी कब्र पे। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, यह इंसान तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाला था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाइयों और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता और गुजरा करता था तो मुझे कौन सा गुरूर घेरे होता है। अगर मैयत नेक होती है तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है, क्या तुझे मालूम नहीं है यह शख्स नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों से रोका करता था? तो कब्र कहती है, तब तो मैं इसके लिए सब्ज़े में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह पाक की कुर्बे रहमत में जाएगी। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोज़ा, हज, जिहाद, सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते उनके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है, इससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर तो फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं जो तो रोज़ा कहता है, तुम्हारे लिए इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह की खुशनदी के लिए इसने बहुत रोज़े रखे और तवील भूख प्यास बर्दाश्त की। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ से आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं कि हट जाओ, इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका कहता है, मेरे दोस्त के पास से हट जाओ, इन हाथों से कितने सदकात निकले हैं जो महज अल्लाह की रज़ा के लिए दिए गए।
और इन हाथों से निकल कर वो बारगाह इलाही में मकबूलियत के दर्जे में फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत को कहता है कि तेरी ज़िंदगी और मौत दोनों बेहतरीन है, और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फर्श बिछाते हैं और उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं। हद निगाह तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है और जन्नत की एक किंदिल उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है, जिससे वो क़यामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को कब्र में बिठाया जाता है, वो चलने वाले की कदमों की चाप को सुन रहा होता है, तो उसके साथ कब्र गुफ्तगू करती है और कहती है, ये इंसान तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मुझसे मेरी तंगी से, बदबू से, हैबत और कीड़े मकोड़ों से ना डराया गया था? अब तू मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? हज़रत मोहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि हर मरने वाले पर मौत के वक्त उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। वो नेकियों की तरफ टिकटिकी बांधे हुए दिखता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।